नहीं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप। वार्म अप हम नेक्स्ट से शुरू करें। करेंगे, सो उसके लिए यू कैन जस्ट डू द नेक वार्म अप फर्स्ट, और उसके लिए अपने चिन को नीचे और ऊपर लेकर जाइए एंड रिलीज द टेंशन इन योर नेक वेरी स्लोली। 3 to 4 or even 5 rounds is fine. And then left to right. So अपने ईयर को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश कीजिए, ईयर टू शोल्डर्स। इसमें कंधे को ऊपर नहीं लाना है, ईयर को नीचे लेकर जाइए एंड फील that your neck muscles are getting warmed up, at the same time tension release हो रहा है। Now the shoulder warm up. So backward motion में full motion दीजिए, backward motion, full motion. You can do this 7 times and then forward 1, 2, 3, 4, 5, 2 more. And relax. Let's do the wrist warm up. Wrist का हम काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, so feel your wrist warming up and do the reverse. Keep a smile on your face while doing exercise. Awesome. And then do the hip rotation, hip circle, full motion. So just be in comfort. जितना आप कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए। एंड ऑपोजिट एंटी क्लॉक। आपके एब्स भी एंगेज हो रहे हैं इसमें, योर कोर इज गेटिंग एंगेज्ड एंड रिलैक्स। नाउ what you can do is you can just stretch your hamstring and then quadricep at the same time. आप चाहे तो साइड में सोफ़ा का या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड डायनामिकली इसे स्ट्रेच कीजिए। हम पूरा दिन क्योंकि बैठे रहते हैं तो ये मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, quadricep एंड hamstring. सो 3 बार आप कर सकते हैं both the legs. Keep a support. अगर out of balance हो रहे हैं, keep a support. Feel the stretch in your hamstring and now in the quadricep, your thighs. Last time.
And the last warm up, which is ankle. So simply circle में घुमाना है उसे, very easy. And then anti clock, उसे बता दीजिए कि हम ready है वर्कआउट करने के लिए. Other leg. Beautiful. धीरे 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 आपका बॉडी मानो खुल रहा हो. Opening up for the exercise. ऐसा फील कीजिए. Awesome. Let's start with our first exercise. Warm up is over and the first exercise is simple jumping jacks. So what you're going to do is 1, 2, 3. Let's do 30. All right. Keep going. Let's do 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 more, guys. 3, 4, 5. 10 more. All right, awesome. Next exercise, which is inchworm. So what you're going to do is, आपके पास अगर मैट है उसके एज पर आ जाइए. गो डाउन, वॉक 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 वॉक. प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए. कम बैक एंड स्टैंड. वन मोर. गो डाउन, come back and stand. Keep going, keep going, keep going. 3. Let's do 10. 4, 6 more. ऊपर आए तब बिल्कुल सीधे हो जाइए. 5. Stand straight. Go down. 6. 4 more, guys. Come on, you can do this. Easy. 3 more. 2 more. And the last one. And come up. Next exercise, number 3 exercise, that is shuffle and touch the ground. So let's go. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 10 each side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. And relax. Amazing, guys. How is it feeling? Let's do the next exercise, which is mountain climbers. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's do mountain climbers. Plank position में आ जाइए and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 more. 19, 20, and you can relax. Beautiful. Already you have done 4 exercises. Next one is slow burpees. Slow burpees, you can just do 15. If not, just do 10. All right? So, mat के आगे आ जाइए. Up, down, दोनों legs पीछे, दोनों legs आगे, and up. Come on, let's do 10 at least. This is slow, this is not fast, so you're not jumping. If you want, you can jump. So you can jump back, you can jump forward and up. 5, 6, 7, 8, 9, and last one,
Awesome, wonderful. Next one, and that is reach and crunch. So one side, अपने feet को almost 45 से थोड़ा सा tilt कर सकते हैं, 45 भी चलेगा. And then you can turn to your side a little bit and reach and crunch, crunch, crunch. Try 15 each side. 5, 6, 7, 9, 10. 5 more. 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4. Come on. Reach and crunch. 5 more. Reach and crunch. Last one. Amazing, guys. Beautiful. Next one, and that is plank ही करेंगे, but then you have to come up and down in plank. So in this position, 1, 2, just do 10, 3, 4, 5 more. You can do this. Come on. Last one. And you can relax. Whew. Let me know in the comment, how are you feeling at this moment? Beautiful. Next one, and that is alternate knee and elbow touch. So come to the plank position and then put your heels down. All fours में आ जाइए. Alternate hand and leg raise and then crunch. 1, find your balance. 2, 3, 4, 5. Let's do 10. And last one. Beautiful. Other side. Come on, you can do this. Other side. 2, 3, 5. Last one. And relax. Good. Very nice. The next one, 8th exercise that we have done. The 9th one, last 2 left. That is Superman. Superman. So, उल्टे लेट जाइए आपके मैट के ऊपर. For the back, we are going to do this exercise. So what you have to do is, दोनों हाथ को आगे रखते हुए हाथ को भी ऊपर लेकर आना है और पैर को भी ऊपर लेकर आना है, like this. 1, down. 2, and down. Do 10. Feel your back muscles working. Hold for a second and down, then down. Come on. Last one. And relax. Okay, now comes the last one, and that is you're going to lie down on your mat like this, on your elbow. Okay, और नीचे के leg को bend कर दीजिए 90 degree angle, and in this. So exactly आपके एक knee के नीचे दूसरा knee होगा, and 90 degree angle आपको bend करना है. Keep your hands here or here, जो भी आपको comfortable लगे, and leg raise. 2, 3, 4, 10 each side. दोनों leg पर करना है at least 10. And relax. Other side. Rest on your elbow. Bend your knees and go 1, 2, 3, 4, 5. This is very easy. 6, 7. Feel your outer thigh. You can do more of these, no problem. And relax. Let's take a break of 1 minute. If you feel like you can just drink some water, 1 या 2 सिप लीजिए ज़्यादा. एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा. 10 एक्सरसाइज है, सिंपल सी है. लेट्स डू द कूल डाउन. Awesome. So just sit
एंड देन हाथ को पीछे लेकर जाइए, लुक अप, अपने बैक को बेंड कीजिए, चेस्ट स्ट्रेच, and then hug yourself, round your back. One more time. Hug yourself, other side. Two more. Hug yourself. And hug yourself. And relax. Let's do some shoulder stretch. Hold for 10 seconds. Other side, hold for 10 seconds. Keep breathing deep. Feel the blood flow, the energy moving in your body from your head to the toes. Relax. Tricep stretch. इसे stretch कीजिए. Close your eyes. Feel the stretch. Other side. Breathe out from your mouth if you need. तो ज़्यादा relaxation का feeling होगा आपको. And then relax. Now अपने leg को butterfly pose में लेकर आइए. And just feel the stretch. Amazing stretch. Beautiful. Keep breathing deep. Keep breathing deep. Let's come to Baddha Konasana, the last pose, and that is ऐसे ही रखते हुए you can slowly go down, down. And slowly, whenever you are ready, you can come back and you can stand up slowly, very slowly. And thank yourself for supporting you for this exercise. ये 20 Good morning, everyone. I hope सबने enjoy your workout session. Good morning. तो अभी हम बात करेंगे learning from कथा के बारे में बात करेंगे, podcast इसके बारे में, book के बारे में बात करेंगे. इससे पहले अपना experience share करेंगे, जादू अपनी लाइफ में जो हो रहा है. हाँ जी, वेलकम सुप्रिया भाभी. हाँ जी, जैसे कल आपसे बात हुई थी ना कि मेरी भी ऐसी रिटेलिंग होगी क्या कभी, तो कल क्या हुआ कि जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ही बात की थी, तो जैसे एक से बात हुई तो बोले यार मुझे नहीं करना, तुम कर दो अपना ऑर्डर, तो उसने मल्टीविटामिन का ऑर्डर दे दिया. एक से और बात हुई, एक का मैसेज आगे होके आया कि मैंने कहा आपके आईडी से खरीदो, तो उसका पीसी का पासवर्ड कुछ मिल नहीं रहा था. आजकल अपन लोग पीसी का नंबर अपने को पता नहीं चलता ना, तो मैंने कहा रिक्रिएट कर दूं, तो बोले नहीं तुम ही खरीद दो. तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम और कैल्शियम का ऑर्डर उससे आया. तो ऐसे करके एक मेरी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उसके घुटनों का पेन चल ही रहा था, वो कब से कह रही थी, तो वहां से ग्लूकोसमाइन का आया. तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा जादू तो होता है बिल्कुल. तो कल ये जादू हुआ मेरी उसमें लाइफ में. नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ग्रेट, ऑसम शेयरिंग. बिल्कुल जादू होता है, बस हम अपना सोच के बैठे कि हाँ पूरा का पूरा माइंड को हमने फीड दे दिया कि हाँ ये सब होना है, तो पक्का ये होना ही है. तो कोई और शेयर करना चाहेगा? हेलो. हाँ जी, वेलकम शांति दी. सभी को गुड मॉर्निंग. कल मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस था. मैंने कुछ दिन महीने भर पहले किसी को किया था फेशियल, उन्होंने फेशियल किट खरीदा था, तो कल उन्होंने बोला मेरी फ्रेंड को भी करना है और मेरी फ्रेंड भी खरीदना चाहती है. तो देखो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा जुड़ता जाता है. तो हम जब एक बार करके दिखाते डेमो,
तो इतना अच्छा रिजल्ट था। अब उसकी फ्रेंड बोली आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, तो बोला मैंने ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं, तो बोला मुझे भी दिलवाओ, मैं भी लेना चाहती हूँ। तो मतलब एक से दूसरी कड़ी जुड़ती चल जाती है, ये जादू ही हो रहा है, वरना अब तक तो हम सोचते हैं कैसे बिकेगा क्या करेगा। लेकिन मेरा आर्टिस्ट्री कल और लिमिटेड एसेंस मैंने अभी आया भी नहीं है, मैंने किसी और के लिए मंगाया था, वो आना करने करके तो दूसरे ने खरीद लिया, मतलब पहले ही बुक करा दिया। तो ये एक जादू ही हो रहा है कि सच में इतनी कॉस्टली चीजें हम लोगों को भी लगता है, पर लेकिन निकली हुई। थैंक यू। ग्रेट। अब जैसे शांति दी ने बताया, खरीदा था किसी और के लिए, है ना, उसने मना कर दिया। अब ऐसे में अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन वहां पे हमने फिक्र नहीं की, अबंडेंस है, तो दूसरा कस्टमर आ गया। वो घर पे पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही एक कस्टमर हट गया तो दूसरा कस्टमर आ गया। तो जैसे तिलक सर बताते हैं ना, पैसा आना तय है, कहाँ से आएगा ये नहीं पता, है ना। तो सृष्टि ने बोला कि हाँ ये जो है रिटेल होगा, कहाँ होगा, क्या फर्क पड़ता है, किसी कोई और कस्टमर मिल गया, है ना। ग्रेट, ऑसम शेयरिंग शांति दी। कोई और शेयर करना चाहेगा? कुछ भी हम अपने लाइफ में जो गुड भी मॉर्निंग। घटना हो रही है। गुड मॉर्निंग नीता दी, वेलकम। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं तो बस कल का अपना एक वो एक्सपीरियंस भी क्या है, मतलब मैंने ऐसी थॉट, एक जैसे बोलते हैं ना कि अभी हम लोग ने इतना जादू पड़ा है और सारी चीजें देखी हैं, तो मैं कल ऐसे ही पूजा करते वक्त सोच रही थी कि मैं पहले ऐसे बहुत ज्यादा बोलती थी मेरी और आने वाली हर अच्छी खबर के लिए धन्यवाद और ऐसे ना, तो मैंने कल ऐसे ही बस एकदम लास्ट में जब मैंने पूजा एंड की तो मैंने ऐसे बोला, मतलब ना सुबह को। और मतलब मुझे ये भी था कि आज मेरे पास बहुत अच्छी खबर सी आने वाली है और बहुत अच्छा होने वाला है और इतनी सारी अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो मैं जब लंच कर रही थी तो मैं दिन में फ़ोन आया कि अरे कोई मिनी के डेमो देखना चाहते हैं, उनको और भी शायद पीसेस चाहिए मिनी के। तो मुझे लगा, मैंने कहा ओह! ये तो बहुत ही बढ़िया कमाल हो रहा है। तो मतलब जैसे ना वो इतने दिनों से मैंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेरी और आने वाली हर अच्छी खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब वो था कि हम लोग अपने उसमें ना रह जाता है, भूल जाते हैं, हम बोलना ही भूल जाते हैं। तो मतलब सिर्फ बोलने से इतने कमाल हो रहे हैं, तो अगर उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो सबके लिए कमाल हो सकता है। तो आप ज़रूर से जो है ग्रैटिट्यूड को जादू के साथ ना भूल जाएँ और ग्रैटिट्यूड देते रहें। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, ऑसम। तो बिल्कुल यही वाली चीज है, ग्रेटिट्यूड नहीं भूलना है। और डेफिनेटली वो सब जो है ना, अट्रैक्शन, जैसे विवेक भैया बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है वो तुम्हारे अंदर आता है। तो इसी तरह से जो इस जादू वाले सेशन से मुझे लगता है कि मैग्नेटिज्म आ गया हमारे अंदर। कस्टमर्स जो है वो खुद हमारे पास चल के आ रहे हैं, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो खुद हमारे पास चल के आ रहे हैं। इसी के चलते मैं भी बताना चाहूंगी कि कल एकदम से व्हाट्सएप पे मेरे पास भी एक मैसेज आया कि मुझे 5 बॉक्सेस जो है वो बॉडी की के चाहिए, तो आप अभी अवेलेबल करा पाओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा पाऊंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। ये एकदम जो है वो जादू हो रहा है लाइफ में। और मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा क्रेडिट ये जादुई सेशन का है, जो हम इतना शिद्दत से डेली ज्वाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं। कोई भी कुछ और शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस को लेके तो शेयर कर सकते हैं। 1 या 2 एक्सपीरियंस और लेंगे हम, फिर आगे चलेंगे। हर एक छोटी चीज़ जो है वो शेयर करने के लिए होती है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना, तो उसमें और पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और डेफिनेटली हर एक चीज़ से लर्निंग भी होती है। तो सामने जब हम एक बात शेयर कर रहे होते हैं तो वही चीज़ें जो है वो दूसरों के लिए बहुत काम की होती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन हम वहाँ पे भेज रहे होते हैं और वो एक्सपीरियंस वहाँ पे भेज रहे होते हैं, तो उनके भी काम का होता है। तो हर एक एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो शेयर करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सीमा मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो कल जैसे संतोष ने बताया था कि हम एक एप्सा की मीटिंग के लिए गए थे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था, वहाँ से हमें रिस्पांस आया था। तो कल वहीं से एक ज्वाइनिंग आई है, तो ज्वाइनिंग कराई है कल मैंने उनको। तो होपफुली वो आगे बहुत अच्छे से करेंगे और वहाँ से और भी ज्वाइनिंग आने की उम्मीद है, जो हम उनके नीचे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। तो वाओ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच कार्की। तो एप्सा मीट की वहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो एक ज्वाइनिंग हो चुके, तो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक जो है वो वहाँ पे एक डोर ओपन हो गया है ना।
और जब वो बिजनेस में आके और फिर अपने खेतों में एप्सा यूज करेंगे तो उसका एक अलग ही, क्योंकि वो विश्वास के साथ, फेथ के साथ करेंगे और उनको डबल बेनिफिट दिखेगा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है और उनकी फील्ड में भी, खेतों में भी बेनिफिट हो रहा है। तो ग्रेट, ऑसम शेयरिंग, थैंक यू गार्गी। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कथा। कथा डेफिनेटली सबने सुनी होगी, किस किसने सुनी है हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही हैंड रेज दिखे मुझे, नीता जी और रोहित भैया के, तो पुष्पा दी ने भी सुनी है। ग्रेट, किसी और ने नहीं सुनी है शायद से, जो हमें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी देखेंगे छोटी छोटी बातें जिससे कि हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अरुणा दीदी ने भी सुनी है, तो मैं पुष्पा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, पुष्पा दीदी थोड़ा सा समराइज करें, अपना टेक अवे बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पुष्पा सत्यानी दिस साइड। कल मैंने इनका सुना था और मुझे दो चीजें, मतलब जैसे इनका प्रोफाइल था बहुत शानदार था कि मैकेनिकल इंजीनियर है, डूइंग वेरी गुड इन मारुति, एंड एट दैट टाइम मारुति मेरे ख्याल से वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी थी इंडिया में, और वो प्रेस्टीज पॉइंट भी था। और जैसा वो बता रहे थे कि वाज वेरी सक्सेसफुल इन हिज करियर, ऐसा नहीं था कि वाज नॉट डूइंग गुड, वो लगातार उनको प्रमोशंस मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे। और उनको लगा कि जो चीज जैसे इंसान ने कभी फील ही नहीं करी है वो कभी महसूस भी नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली यही है कि हर आदमी को लगता है कि वो सक्सेसफुल अपनी नजर में होता भी है, बट जो चीज जैसे फ्रीडम ऑफ टाइम एंड एंजॉइंग फ्री टाइम विद फैमिली, कई लोग इसको असेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज फील ही नहीं करी। तो जो चीज फील ही नहीं करी उसकी कमी भी कैसे महसूस कर सकता है आदमी ना। तो वो बोले कि मेरे को कभी ऐसे कमी लगी भी नहीं कि मैं कोई फ्री टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं। बोले पर मेरे फादर का जब बाईपास हुआ एंड एट दैट टाइम व्हेन आई टुक 15 डेज ऑफ, और तब मुझे लगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ। एंड देन ही, वैसे उससे पहले भी वो बिल्ड कर रहे थे बिजनेस, बट उतना सीरियसली उन्होंने उसके बाद ही करना शुरू किया, एंड देन ही वेंट ऑन फॉर सक्सेस। और उनकी वाइफ ने भी इनिशियली जैसे बहुत कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया था, बट लेटर जब उनको लगा कि जब उन्होंने एक बार 15% जाने के बाद भी वापस वो बैक हुए, तो उनको लगा कि वो कहाँ गलत थे। तो उनको पता लगा कि वो प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं कर रहे थे। तो बोले कि वही सारी टीम डुप्लीकेट कर रही थी कि वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे थे। तो वो एक कनेक्टिविटी नहीं बैठी। फिर उनकी वाइफ ने जब करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को यूज, और उसके बाद द स्टोरी तो डेफिनेटली सक्सेस है ही। तो जो मेरा टेक अवे रहा वो ये रहा कि कुछ चीजों को असेस करने के लिए कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से ही काम ले लेना चाहिए। और जब जैसे साकेत जी या पीयूष जब बोलते हैं कि 2 लाख की इनकम तो हाँ उनको पहले भी आ रही थी साकेत को, बट जो वो 2 लाख रुपए और जो अभी एमवे के थ्रू 2 लाख रुपए आता है, उसके अंदर बहुत बहुत एक जो क्वालिटी डिफरेंस है वो लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव सीन दी बोथ साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो आई एम येट टू एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही है कि आई एम सक्सेसफुल इन माय फील्ड। आई डोंट फील लाइक कि मुझे कुछ कमी है। एंड जहाँ तक की बात है कि फ्री टाइम विद माय किड्स, आई एम एंजॉयिंग दैट। बट हो सकता है कि वो जो इनकम्स अभी मैं जनरेट करूंगी इस बिजनेस के थ्रू, दैट विल गिव मी अ वेरी डिफरेंट आई मीन एक्सपीरियंस, एंड जिसको शायद वर्ड्स में हम अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, एंड आई टुक दिस क्लू फ्रॉम दिस स्पॉटिफाई कि हम लोगों को उस तक पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि व्हाट वी आर मिसिंग आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। जो एक एक चीजों को आपने हाईलाइट किया वो बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली जैसे पुष्पा जी ने बताया कि हम उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाते क्योंकि वो चीजें हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होती, तो कभी दिमाग में ही नहीं आती, है ना। जैसे टाइम फ्रीडम के लिए उन्होंने बताया है, और किस तरह से उनको कथा में बताया गया था कि किस तरह से लग रहा था कि सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, लेकिन जब लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, वो एक चीज उन्होंने एक्सपीरियंस की,
तो लगा कि ये एक अच्छा रीजन है जिसके थ्रू जो है वो बिजनेस जो है वो बिल्ड किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत शानदार थी। मेरे को कुछ और हैंड रेज दिखाई दे रहे थे। तो जो भी अपना वन लाइन टेक अवे शेयर करना चाहे प्लीज वेलकम। सबसे सुनना चाहेंगे। वन लाइन टेक अवे हम सबसे सुन सकते हैं जिन्होंने भी कथा सुनी है। आई टेक अवे थिंक मेरा यही है कि प्रोडक्ट को यूज करना और सिस्टम को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। टीम हम बिल्ड करें बट प्रोडक्ट यूज पहले करें, जो वो मिस कर रहे थे अपने जर्नी में शुरू में। डेफिनेटली। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, कई बार बिजनेस में नए नए लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि रिटेल कैसे हो सकता है ना। तो रिटेल तो तब तक नहीं हो पाएगा उतना अच्छा तरीके से जितना आप यूज करके करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने रिटेल करा। एक्चुअली हम शेयर कर रहे होंगे। Vivo 120 के नाम से मुझे हैंड रेज दे रहा है, तो प्लीज वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करें और बताएं। Vivo 120 के नाम से मुझे शायद अभी उनका डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। हाँ जी, तो वन लाइन टेक अवे और कौन शेयर करना चाह रहा है? मैं कहूंगी कि एक्चुअली मैंने कल भी सुनी थी, कल भी शेयर की थी, आज फिर से सुन रही। और मुझे ऐसा लगता है एक बार ऑन करने के बाद ऐसा लगता है कि सुनते रहो। इतना अच्छा उन्होंने बताया था कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्ट यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे थे, बिजनेस नहीं बन रहा था। फिर एसोसिएशन में नहीं थे, इसलिए बिजनेस नहीं, मतलब मेंटरशिप नहीं ले रहे थे और इस तरह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, ऑडियो नहीं सुन रहे थे, इसलिए बिजनेस नहीं बन रहा था सेकेंड टाइम। फिर जब दोनों चीजें की उन्होंने और उन्होंने इसकी वैल्यू समझी, तो फिर उनका बिजनेस कैसे चलने लगा एंड हाउ दे कुड बिकम फ्री फ्रॉम व्हाटएवर जॉब दे वर डूइंग। और उससे भी ज्यादा अपनी सैलरी, दोनों उन लोगों की सैलरी से ज्यादा अब एमवे के थ्रू अर्न कर रहे हैं और कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ग्रेट शेयरिंग। डेफिनेटली। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना वन लाइन टेक अवे? क्योंकि पूरी कथा सुन के अगर टेक अवे हमारे पास नहीं है कि हमने इससे क्या सीखा, तो वो सुनना बेकार है, फिर तो दोबारा हमें सुनना पड़ेगा, राइट? तो कौन शेयर करना चाह रहा है? हम 2-3 और ले सकते हैं। मैंने जब कथा सुनी कल तो मुझे लगा कि जब उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छा कर रहा था, सब कुछ था, मैं सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहता था, है ना? तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल थे वो अपने उस करियर में, हर 2 साल में ग्रोथ हो रही थी, फिर भी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा के लिए उन्होंने इस बिज़नेस को किया। तो किसी का कोई भी कारण हो सकता है, कई बार हम लाखों रुपए बोल रहे होते हैं, बट हम उसको जो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंडली उन्होंने बताया कि जब कुछ नहीं हो रहा था और मेरे पास जब 1,200 रुपए का चेक आया तो उसके बाद ही मैं इतना मोटिवेट हो गया, है ना? तो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि 1,200 रुपए का चेक आया तो मतलब ये शायद ऐसे कथा कहानी वाली बात ही लग रही थी, बट जब उन्होंने जब बोला तो मुझे ये लगा कि वाक़ई में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हैं। और जब प्लैटिनम फोरम के बाद जब उनकी वाइफ़ ने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो हमेशा हम बात करते हैं कि इसके जब हम लोग अगर चैलेंजेस की बात की बजाय अगर रिवॉर्ड्स की बात करें, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा लोगों को जो है इस बिज़नेस को तरफ ला सकते हैं और उनकी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली। और चैलेंजेस की वर्सेस अगर रिवॉर्ड्स को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मतलब चैलेंजेस तो ऐसे कुछ भी नहीं है जितने रिवॉर्ड्स हैं। और अभी तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा थ्रिल है, हमारे मेंटर्स जो है वो वापस आ चुके हैं अपने फॉरेन ट्रिप से। तो मुझे तो लगता है कि इतना ज्यादा अमेजिंग ट्रिप, और आपको काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, है ना? पैसे भी ज्यादा ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा आप देख रहे हैं कि कोर प्लस है ना? जितना मिलना चाहिए उसमें कोर प्लस ऐड होके ज्यादा पैसा मिल जाता है। फिर उसके अलावा 600 पीवी क्लब है जो हमारे डायमंड मेंटर विवेक भैया ने चलाया है। डेफिनेटली आप सब भूले नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें। तो हम किस तरह से जो है वो सारे रिवॉर्ड जो काम किया वो तो हम उसका तो पैसा ले ही रहे हैं, सारा कुछ हो ही रहा है, लेकिन अपने लिए सिक्योरिटी यहाँ पे ले पा रहे हैं, और बहुत सारे और भी रिलेशनशिप का रिवॉर्ड यहाँ पे अपने अंदर जो अंदरूनी जो चेंज हो रहा है हमारे अंदर, तो वो मुझे लगता है कहीं पे भी पॉसिबल ही नहीं था। किसी और बिजनेस या जॉब को कर रहे होते तो सिर्फ सिर्फ काम कर रहे होते
और पैसा अर्न कर रहे होते हैं। यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्न कर रहे हैं, अपने आप को पूरा अंदर से चेंज कर पा रहे हैं, अपने खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। अब हम आगे चलेंगे। लास्ट अगर कोई शेयर करना चाहता है कथा से टेक अवे तो शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बुक की तरफ हम आगे चलते हैं। तो वापस से कि बताएं किसने-किसने बुक पढ़ी है? 9 कोर स्टेप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप जो है बुक पढ़ना, वो किसने पढ़ा है? क्योंकि कल से तो मोस्ट प्रोबेबली तिलक सर का सेशन होने वाला है, कल से तो चीज़ें उसी तरह से होंगी। आज रिवीजन वाला डे था हमारा, तो मुझे 4-5 ही हैंड रेज़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी हैंड रेज़ दिखाई नहीं दे रहे। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, हैंड रेज़ हो नहीं पा रहे होंगे, है ना? पढ़ी तो सबने ही होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी सबने होगी, शायद हैंड रेज़ हो नहीं पा रहा होगा। तो नहीं पढ़ी है मतलब सबने, हाँ? पढ़ना हमें ज़रूरी है क्योंकि जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, जो हम जादू की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह से हो रही है। जब हम पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और सब जो एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं चीज़ों को, मुझे लगता है कि मैं जब बुक पढ़ती हूँ तो 5 या 10% जो है वो मेरे दिमाग के अंदर जा पाता है। और जब मैं यहाँ पे इस सेशन में उन चीज़ों को दोहराते हैं, सबसे सुनते हैं और सबके अपने शब्दों में सुनते हैं, तो और भी चीज़ें जो है वो अंदर जाती हैं और फिर उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो आज कौन शेयर करना चाहेगा बुक के बारे में? सुप्रिया भाभी बिल्कुल। को इनवाइट। हाँ जी, अरुणा दीदी शेयर करना चाह रही हैं। मैं हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं करूँ? कल जैसा कि दौलत की फाइल 2 और 3 नंबर अपने को पढ़ना था, तो इसमें पहला जो मैंने पढ़ा है दौलत की फाइल नंबर 2, उसमें पहला ही सेंटेंस बहुत शानदार था कि अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं, मतलब सुरक्षात्मक रूप से खेलते हैं। तो जैसा कि तिलक सर ने बताया था कि अगर सुरक्षात्मक खेलते हैं तो जीतने के चांस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बाई चांस ही आप जीत पाते हैं, क्योंकि आप खेल ही सुरक्षात्मक ढंग से रहे तो फिर जीतने का बहुत कम बचता है चांस। तो इसको पूरी तरह से सुरक्षात्मक खेलने की जगह अपने को थोड़ा रिस्क टेकिंग भी बनना चाहिए, जिससे अपन अगर सुरक्षात्मक रहेंगे तो अपने पास हमेशा सिर्फ काम चलाने लायक पैसा ही रहेगा। उसमें अपन अमीर नहीं बन सकते। चाहे अपन लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने जो ब्लूप्रिंट है वो आड़े आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आरामदेह होने में और कड़का होने में ज्यादा अंतर नहीं है। आरामदेह में है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट पाते हैं और उसको खर्च कर देते हैं, पर उससे भी अमीर नहीं बन सकते। तो इसमें ये भी है कि अपने को लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए, गतिविधियों में बताया गया था उसमें कि अपने को लक्ष्य ऐसे बनाने चाहिए कि अपन अमीर बनने की तरफ बढ़ सके, ना कि आरामदेह। और जो उन्होंने बताया था वो एक शब्द मैं भूल रही हूँ, पैसे को खेल को सुरक्षात्मक खेलने के वो तरीके में, कि अपने को आरामदेह भी नहीं बनना है, अपने को अमीर ही बनना है। तो उसके लिए अपने को अपने माइंडसेट चेंज करना होगा, ब्लूप्रिंट चेंज करना होगा और कुछ गतिविधियां ऐसी करनी होगी, जैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा कि अपने वार्षिक आय और नेटवर्थ को कैसे बढ़ाएं, है ना। ऐसा अपने दैनिक उसको नहीं बढ़ाएं, अपने मंथली उसको नहीं बढ़ाएं, अपने वार्षिक आय और नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। और कोई भी, जैसे इसमें एक गतिविधि उन्होंने बताई थी कि किसी ने रेस्टोरेंट में जाकर बाजार भाव पर कोई चीज खरीद के खाएं ताकि आपको अमीरी का एहसास हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जो दौलत की फाइल नंबर 3 थी, उसमें उन्होंने मिलियनेयर माइंड इंसेंटिव सेमिनार के बारे में बताया कि वो उसमें लोगों से सवाल पूछता है कि अमीर बनने की कोशिश और अमीर बनने से जुड़ी संभावित नकारात्मक बातें क्या है। तो कई सारे जवाब उनके पास आते हैं कि भाई मैं दौलत कमाने के पास गमा दूंगा तो क्या होगा, फिर मैं असफल कहलाऊंगा, लोग टैक्स जो मेरे से बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे, आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा,
या लोग मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है, या इतने सारे पैसों का प्रबंधन करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो अपन अपने ब्रह्मांड से जो अपने हायर पावर से जो अपने करते हैं, ऊर्जा ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं और अपने विचारों के द्वारा, तो उसमें अगर अपन कंफ्यूज होंगे तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो अपने को कोई चीज पूरी तरह से, जैसे अपन यहाँ से एक विचार भेजते हैं कि मुझे अमीर होना है, मैं अमीर हूँ, तो वहां से वैसे बनना शुरू होता है कि भगवान अमीरों वाली चीज हमारे लिए भेजना शुरू करता है, और दूसरे ही पल अपन सोचने लगते हैं कि अमीर होने पर तो ये फायदे, ये नुकसान है, ये है, तो फिर वो वहां पे रुकावट आ जाती है, वो दूसरी चीजें भेजने लगता है जिससे आप अमीर ना बन पाए कभी भी। तो अपने माइंड स्टेट को हमेशा चेंज करना है और अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि अपन हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, दौलत के बारे में, पैसे के बारे में, अमीरों के बारे में, और अपने मनचाही चीजों को लिख ले और उनके बारे में बराबर सोचे, तो अपने को वो मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणा दी, ऑसम, बहुत अच्छा आपने बताया, और आपकी आवाज से हम पूरा वाइब्रेशन कैच कर पाए, लेकिन उससे ज्यादा वाइब्रेशन हम कैच कर पाते अगर हम आपको देख भी पाते। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो अपना कैमरा ऑन करके बोलेंगे और बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है ना। और डेफिनेटली जैसे पीयूष भाभी बोलते हैं, तिलक सर बोलते हैं, कैमरा ऑन करके जो है वो वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो मतलब एक जो है अलग तरीके की वाइब्रेशंस जो है वो आ पाती है। डेफिनेटली अरुणा दी ने जैसे बताया कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो कैसे होगा, क्या होगा, और उतना ही हम सेफ उसमें जाएंगे तो कभी भी हम अमीर नहीं बन पाएंगे। और रिस्क जो है वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके रिस्क लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे बात करते हैं ना, मुझे एक जैसे जैसे अरुणा दीदी बता रहे थे, मुझे एकदम से एग्जांपल याद आया एक बहुत छोटे बच्चे का, जबकि वो क्रॉल करना सीखता है ना, बेड पे रहता है, क्रॉल करना सीखता है, वो क्रॉलिंग करता रहता है, कितनी बार वो बेड पे से गिरता भी है ना। तो वो जब बेड से नीचे उतरता है तो बिल्कुल पूरे समर्पित भाव से नीचे उतरता है, जब वो पहली बार दूसरी बार उतर रहा होता है, कि हाँ रिस्क तो लेता ही है ना, तभी तो वो क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है। लेकिन उसमें ये भी है कि मैं चलूंगा और मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे बचा ही लेंगे, पकड़ ही लेंगे, कितनी बार हम उसको पकड़ रहे होते हैं, है ना। और लेकिन ऐसे रिस्क लेते लेते उसके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए क्रॉल करना और खड़े होके चलना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही मतलब वो रिस्क लेके सीख रहा होता है उन चीजों को, जितना हम आज अपने डिसीजन को लेते हैं। तो डिसीजन के लिए भी कितना ज्यादा अच्छा बताया है। जब आप डिसाइड करते हो कोई भी चीज, तो आप डिसाइड का मतलब ही क्या है कि आपने कोई भी और विकल्प के लिए बिल्कुल जो है वो आपका और कोई विकल्प ही खत्म कर दिया, तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो हम कहते हैं ना, एमवे बिजनेस में ज्वाइन करना एक अलग बात है और डिसाइड करना एक अलग बात है। जब हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद सफलता दूर नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपने देख लिया मेरे को ये काम करना है, मैं इसमें ही मुझे सक्सेस होना है, कोई और विकल्प है नहीं। तो सुप्रिया भाभी कुछ और एड ऑन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। नहीं भाभी, कुछ मैंने भी यही पढ़ी थी तो मैं भी यही बोलना चाह रही थी। दीदी ने सब कुछ बता दिया तो मैं कर रही थी कि हाँ मुझे भी यही बोलना था, तो सेम चीज ही है। ग्रेट। तो नेक्स्ट हम मुझे श्योर नहीं है कि कल से तिलक सर का सेशन होगा, नीता दी आप बताएं, नेक्स्ट हम इससे आगे करेंगे या क्या करने वाले हैं कल हम इससे आगे कर सकते हैं, फिर अगर सेशन होगा तो वैसे भी सबको वापस रिवाइज करनी थी ना बुक, तो मेरे हिसाब से हो जाएगी सबकी रिवाइज। हम 4 और 5 फाइल के बारे में बात करें। हाँ 4 भी बहुत छोटी है शायद, है ना। 4 छोटा है जी 4 और 5 चलेगा दोनों। इसी में मैं तो एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस बुक में, और बहुत एमवे बिजनेस से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कि हम लोग वाकई में इतना इजी उसमें आ गए हैं अप्रोच में पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए। तो उन्होंने 3 चीजें बोली थी कि आप अमीर बनना चाहते हैं, या अमीर बनने का चुनाव करते हैं, या अमीर बनने के लिए कमिटेड हैं। तीनों में बहुत फर्क है। अगर आप चाहते हैं तो इसका मतलब आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, आप गरीब ही रहेंगे, है ना। और अगर आप डिसाइड कर चुके हैं, चुनाव कर चुके हैं,
तो इसका मतलब आप उससे एक लेवल तो आगे हैं, बट अगेन आपने जो है विकल्प जो है ना अभी भी अवेलेबल है आपके पास में, है ना। और जो थर्ड बात उन्होंने बोली थी, अगर आप कमिटेड हैं, है ना, कमिटमेंट का मतलब यही है कि आप जब सोच चुके हैं कि अब और कुछ विकल्प, आपने सारे विकल्प खत्म कर दिया, है ना, सिर्फ अमीर बनना ही जो है आपने उसमें जो है अपना कमिटमेंट दिया है। तो उसमें मेरे को तो एग्जैक्टली कल मैं रिलेट कर पा रही थी एमवे बिजनेस से। हम बात ही करते हैं ना, कुछ समय के लिए अपने मनोरंजन को छोड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए क्या जो है आप जो करना पड़े वो कर सकते हैं, कुछ समय के लिए क्या आप जो है जैसे बोलते हैं ना प्लान दिखा सकते हैं लगातार। तो उसमें भी ये था कि कुछ समय के लिए क्या आप जो काम कर रहे हैं उसको शिद्दत से कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो यूनिवर्स जो है आपको उसके लिए बहुत बहुत रिवॉर्ड करने वाला है। और रिवॉर्ड के साथ साथ जब हम जादू की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डोंट गिव मिक्स्ड सिग्नल्स टू मतलब यूनिवर्स, एक ही सिग्नल दे कि आप अमीर हैं, अमीर होना चाहते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। और कमिटमेंट के साथ जब हम काम करते हैं और एमवे बिजनेस के साथ में, तो हमें रास्ता तो ऑलरेडी पता है, हमें सिर्फ कमिट करना है अपने आप को कि हम इसको जो है लग कर लेंगे और 3 से 5 साल में जो है हम लोग सब जो है मिलियनेयर एंड बियॉन्ड की कैटेगरी में होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीता दी। बात करेंगे फाइल नंबर 4 एंड 5, पेज नंबर 98 तक है। आई थिंक स्टार्ट पेज नंबर 85 है। 85 से 95 तक कल हम डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करेंगे फोकस शेयरिंग की। तो आज के दिन का आपका फोकस क्या है, आप शेयर कर सकते हैं। आपने किस तरह से अपना डे प्लान किया है, क्या क्या आज आप करने वाले हैं, तो वो बातें आप बता सकते हैं। क्योंकि आपकी प्लानिंग दूसरों के लिए भी बहुत काम की हो सकती है, हो सकता है उसमें उनकी भी प्लानिंग और बेहतर तरीके से बन पाए। आज जेन वाई नेहा गोयल जो है वो प्लान दिखा रही हैं, तो हम बहुत से लोगों को इसमें प्लग इन कर सकते हैं। तो मैंने वही डिसाइड किया है कि वो करूंगी मैं। और लोगों ने मतलब इनफैक्ट सामने से मांगा है कि आप प्लीज मुझे लिंक भेजो, तो आई विल डेफिनेटली सेंड देम द लिंक। सुबह से दिमाग में वही है। थैंक यू सो मच आशा जी। आपने बताया कि रात 9 बजे जेन वाई लीडर हमारी जो कि बीटेक कर रही हैं नेहा गोयल, उनका बिजनेस प्रेजेंटेशन है। तो सब लोग जो है वो इसके ऊपर फोकस करके डीटीएम कर सकते हैं। तो एक अपना दिन का जो है 1 से 2 घंटा जो है वो डीटीएम में स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें कि वहां पे इनवाइट किया जाए। और भी कोई शेयर करना चाहेगा आज के दिन का फोकस? ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आई थिंक 12 बजे एक ट्रेनिंग है, जिसमें कि हम जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। मतलब एमवी की तरफ से ट्रेनिंग है वो। और प्रोटीन के बारे में भी एक ट्रेनिंग है 2 बजे, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को भी इनवाइट कर पाएंगे। और एक जो ट्रेनिंग है वो 4 बजे है, जिसमें कि हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 3 ट्रेनिंग जो है 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ये 3 ट्रेनिंग जो है वो एमबी की तरफ से है, जिसमें कि हम पहले 2 में कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं। और डेफिनेटली 4 बजे वाली ट्रेनिंग हमारे खुद के लिए हो सकती है। और बाकी इसके अलावा कोई भी कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल। अभी हमारी प्लानिंग नहीं हुई है, हमने अभी पेपर पेन पे अपना डे प्लान नहीं किया है। तो डेफिनेटली जैसे हमारे मेंटर्स कहते हैं, सेशन के जस्ट बाद जो है वो अपनी प्लानिंग जो है वो कर लें, डे प्लान कर लें, जिससे कि बहुत अच्छे से और बहुत फ्रूटफुल तरीके से आपका डे जो है वो हो पाए। और बहुत सारी जादुई घटनाएं जो है वो आपके आज के दिन में हो, क्योंकि कल शेयर करने के लिए फिर बहुत सारा कुछ हो, है ना। अब हम आगे चलेंगे प्रेयर की तरफ। तो आज ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? कौन कराना चाहेगा आज प्रेयर? कोई नहीं कराना चाह रहा? मैं करवाती हूँ अभी। वेलकम वेलकम सुप्रिया भाभी। हम लोग सभी अपने जिस भी परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनको याद करते हुए हम लोग प्रेयर करेंगे। प्रेयर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल सोल।
Thank you, God, I am a divine soul. Thank you, God, I am a peaceful, powerful, divine soul. थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसकी संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे और सभी पूरा जो मेरी साथी हैं वो सब सर्वश्रेष्ठ हैं। थैंक यू गॉड इतना सुंदर जीवन देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे मेरे महामस्तिष्क पे गर्व है। थैंक यू गॉड महामस्तिष्क में असीम शक्तियां हैं जो कि सारे सवालों का जवाब दे पा रहा है। थैंक यू गॉड इतना सुंदर बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड इतने अच्छे अपलाइन, मेंटर और इतने अच्छे टीम देने के लिए। थैंक यू गॉड मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य जो हैं 9 कोर स्टेप्स, बुक पढ़ना, सीडी सुनना, अकाउंटेबल, टीचेबल, 100% प्रोडक्ट यूजर, मीटिंग्स अटेंड करना, सारे काम 9 कोर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू गॉड मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य 500 प्लस पीवी की रिटेल कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड लोग घंटी बजा बजा के हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू गॉड एमवे बिजनेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और डायमंड जाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड मैं और मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल ALS क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड बहुत सारा सुख देने के लिए। थैंक यू गॉड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। थैंक यू गॉड इतनी सारी सुख के लिए, वैभव के लिए, इतनी सारी अपार स्ट्रेंथ के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग अपने हाथ रब करके आइस पे लगाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुप्रिया भाभी, बहुत अच्छे से प्रेयर हुई, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और अब जो है टाइम है सभी डायमंड स्माइल को एक अद्भुत फोटो में कैप्चर करने का। स्टिल वेटिंग। रेडी? One, two, and थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम। Have a wonderful पॉडकास्ट में अभी शेयर कर सकती हूँ, कर देती हूँ। गो दे डायमंड। ऑडियो शेयर कर देना। हाँ जी, Go diamond everyone. गो डायमंड। Go diamond.